મોટા ભાગે એમનો ખોરાક છે ગાયનું દૂધ અને ગાયનું ગૌમૂત્ર. આજે 13 વિશ્વ રેકોર્ડ એના નામે છે. એમના એક દિવસમાં 10 કે 12 કલાકમાં 30,000 પુશઅપ્સ મારવાનો રેકોર્ડ છે. 4 વખત રાજસ્થાન કેસરી પણ રહી ચૂકેલા છે. मैंने हिंद केसरी तक में राजस्थान बाल केसरी 4 बार, भारत बाल केसरी अपने वजन में 65 kg में, और आज तक मैंने किसी पहलवान को अंडा मांस खाने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं अपने शरीर पर हाथ टच नहीं करने दिया। जिस चीज़ को कोई नहीं त्याग सकता, आज के नौजवान युवक युवती विद्यार्थी समझते हैं एटीट्यूड और महंगे कपड़े जूते यही जिंदगी है। मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ प्रतिदिन व्यायाम, प्रतिदिन पसीना, योग, इधर पता चलता है किसमें कितना दम है मैदान में। अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में इतनी ताकत है, इतना बल है, इतना स्टेमिना है, तो फिर मुझे हराओ भाई, मेरा मुकाबला करो। खंबालिया में एक से एक खड़ा था वहाँ मैंने कि अगर मेरा ये हाथ है कसम गौ माता की, जीवन में गौ माता का प्रचार करना बंद कर दूंगा। इसे ऐसे हला के दिखा दे कोई। एक से एक मल्ल खड़ा था वहाँ, एक से एक बलवान। થોડા સમય પહેલાં એમનો વિડીયો જ્યારે રામ મંદિર બન્યું ત્યારે કોઈ સોશિયલ મીડિયામાં મને કોઈએ મોકલ્યો હતો કે ભાઈ એમના વતનથી લઈને રામ મંદિર સુધી પોતે દંડ બેઠક કરતા આવા મહેમાન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમને ખાસ અહીંયા લઈ આવનાર આંબલિયાભાઈ પણ એમણે પોતાનું આખું જીવન, ઉંમર નાની છે પણ ખેડૂતો કિસાનો માટે અને ગાય માટે એણે ખૂબ કામ કર્યું છે. હું એમને જ કહીશ કે આમ તો થોડી એમની પણ પહેલાં વાત મૂકે. દિલ્હીમાં જંતર મંતર ત્યાં રહીને પણ ગાય માટે એમને ઉપવાસો કર્યા છે. આપણા જ વિસ્તારના છે અને પોતાના વતનથી પોતાનો પરિવાર શું કરે છે, શું કામ આવું એમણે કરવું છે, તો એ પરિચય પહેલાં એમનો પણ કરાવશે, ભાઈનો પણ વિશેષ પરિચય કરાવશે. એમની સાથે 2 ભાઈઓ છે, સાથે એમનો પણ પરિચય કરાવશે. કે હું કહેતો હોઉં છું તમને કે આપણી દુનિયા છે ને, એ દુનિયામાં 100% લોકોમાંથી 80% લોકો કેવા છે, ખેટા જેવા, એક જાય એની પાછળ જવાવાળા, અને પરિણામ શું આવે જોવાવાળા નથી. 10% એવા છે કે સારું કરવાનું ઈચ્છે છે, કે આપણે સારું કરવું છે, પોતાનું સારું થાય અને સમાજને, રાષ્ટ્રનું સારું થાય એવું ઈચ્છનારા લોકો 10% છે. પણ 10% લોકો તો એવા છે કે પોતાનું ક્યારેય કંઈ વિચારતા જ નથી અને પ્રકૃતિ માટે, રાષ્ટ્ર માટે સતત મથી રહ્યા છે. અને એમાં જે પેલા 80% છે ને, એ બધા એવા વેમમાં છે કે અમે કરીએ એમ બધું થાય છે. પણ ખરેખર થાય આપણી આ પૃથ્વી જો ટકી રહી હોય ને અને જે કંઈ સારું થઈ રહ્યું હોય ને એ આવા 10% લોકો છે. એને પોતાની કંઈ પડી નથી, રાષ્ટ્રની યુવાધન માટે સતત ચિંતિત છે. એટલે વિશેષ વાત ન કરતાં આંબલિયાભાઈને જ કહું કે એમનો પરિચય આપે, પછી મહેમાનનો, એમની સાથે મહેમાનો આવ્યા છે એમનો પણ પરિચય આપે, અને વિશેષ આપણે પોણો કલાક એમની સાથે આપણે ગાડીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. પહેલાં તો પુરુષાર્થ સ્કૂલ પરિવારનો. આમ તો ઘણીવાર અહીંયા આવવાનું થયું. જૂના કોઈ સ્ટુડન્ટ છે અહીંયા 4-5-6 વર્ષ પહેલાંના છે, ત્યારે રાજકોટથી ભાણવડ સુધીની અમે પર્યાવરણ યાત્રા કરી હતી ઉનાળામાં. ત્યારે અહીંયા લગભગ અમારે આવવાનું થયું. ખાસ કરીને મિત્રો, શોર્ટમાં મારે વાત કરવી છે કારણ કે આપણે એમને સાંભળવા છે, એમનું પ્રદર્શન પણ જોવું છે. આપણે માનવ જે દેહ મળ્યો છે, મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, એ કંઈક કરવા માટે મળ્યું છે. કે જીવો તો ઘણા બધા છે ને, કાગડા, કૂતરા બધા છે, અને બધાને પોતપોતાનું ક્યાંક ને ક્યાંકથી મળી રહે છે. તો આપણે મનુષ્ય શું કામ બન્યા છે? આપણે જીવનમાં કંઈક કરવાનું છે. એવું નથી સંયોગ આપણે ગમે ત્યાં લઈ જાય. તમને આજે ભણવાનો મોકો મળ્યો છે,
આવું વાતાવરણ મળ્યું છે, ગુરુકુળ જેવી સ્કૂલ મળી છે. મારા નસીબમાં એ નહોતું. મારું 8મા 9મા ધોરણમાં જ મારે અભ્યાસ છોડવો પડ્યો. ત્યાર પછી સ્પોર્ટમાં પણ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ રહ્યો. ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં, ક્રિકેટમાં તો ખબર પડે બધાને, ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ફાઇનલમાં 1 ઓવરમાં 7 સિક્સ મારવાનો મારો રેકોર્ડ છે. જીવનમાં કોઈ પણ ફિલ્ડમાં એવું આપણે કામ કરવાનું કે એ પ્રમાણ બને બીજા માટે. જેમ કે દેશી ટાર્જન છે આપણા, આખા વર્લ્ડના દરેક લોકોને ચેલેન્જ છે. કેવડી મોટી વાત છે. મોટા ભાગના યુવાનો 100 હરીફો સાથે કોમ્પિટિશન નથી કરી શકતા આજે. ત્યારે આખા માનવ વસ્તીને ચેલેન્જ છે કે સપાટા દંડ બેઠકમાં એને કોઈ દુનિયામાં એવી વ્યક્તિ નથી કે એમને હરાવી શકે. એક દિવસના 5,000 સપાટા મારે. કેટલા? 5,000 આપણે બોલવું હોય તો કેટલી વાર લાગે? 1 2 3 4 5 એમ કેટલી વાર લાગે? 5,000 સપાટા ડેઈલીના મારે છે. 8 10 કલાકનો એના લાઈવ પણ ચાલેલા છે યુટ્યુબ, મતલબ કે ન્યૂઝમાં. અને એમની જે ક્રિયા છે, એમની જે તાકાત છે, એની કિંમત કરીને આપણા જે ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ જે છે, ઓળખો છો બધા, તે આખા ભારતમાં એક પ્રાકૃતિક મિશન, ગૌ આધારિત પ્રાકૃતિક મિશન ચલાવી રહ્યા છે. એમને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે. એ આપણા માટે સૌ માટે ગૌરવની વાત છે. નહીતર તો શું થાય, મોટા ભાગની સરકારો શું કરે, બોલિવૂડના એક્ટરોને પ્રમોટ કરે ને બધા. ટીવીમાં જોતા હશો ને, ગુટખા ખાવાની એડ આપે, ન ખાવાનું પીવાનું, એવી બધી એડ આપે. પણ આપણા મહામહિમ આ જે આચાર્ય દેવવ્રતજી જે છે, એમને આવા મહાન વિભૂતિને પ્રાકૃતિક કૃષિ મોડલના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા. એમનો ખોરાક માત્ર ને માત્ર, અત્યારે આપણે જોયું બધે, એ અન્ન નથી ખાતા, માત્ર ને માત્ર ગાયના ગવ્યનું સેવન કરે. આવી રીતે ક્યાંય ટ્રાવેલિંગમાં નીકળે તો પછી ફ્રૂટ ને ડ્રાય ફ્રૂટ ને એવું લઈ લે. મોટા ભાગે એમનો ખોરાક છે ગાયનું દૂધ અને ગાયનું ગૌમૂત્ર. આજે 13 વિશ્વ રેકોર્ડ એના નામે છે. એક દિવસમાં જે આપણે પુશઅપ જે દંડ કહીએ છીએ, તો એમના એક દિવસમાં 10 કે 12 કલાકમાં 30,000 પુશઅપ્સ મારવાનો રેકોર્ડ છે. 4 વખત રાજસ્થાન કેસરી પણ રહી ચૂકેલા છે. પણ આપણે આજે યુવાનોને બગાડવા માટે, યુવાધનને બરબાદ કરવા માટે એટલી બધી શક્તિઓ કામ કરી રહી છે કે ખૂબ જ આપણે અત્યારે નહીં જાગ્યા તો ખૂબ જ મોડું થઈ જશે. ખાસ મારી બધાને વિનંતી છે કે આપણું નસીબ એ વિધાતા લખે છે, પણ આપણું કર્મ, આપણી ભાવના, આપણું આચરણ, આપણું અનુશાસન એ આપણા હાથમાં હોય છે. અહીંયા તો આપણે સૂચના આપવામાં આવે કે ભાઈ આમની આમ કરવાનું. તો ભાઈએ એક હમણાં બેઠા હતા ત્યારે બહુ વાત સારી કરી કે સીસીટીવી કેમેરો હોય એ કેટલી વાર જોઈ શકે, પણ મોટામાં મોટો સીસીટીવી કેમેરો કોઈ હોય તો એ પરમાત્મા છે, બધું જોઈ છે. તો આપ સૌને મારી એક જ વિનંતી છે કે તમે આગળ જતા કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જાઓ, કોઈ સ્પોર્ટમેન બનો, કોઈ અધિકારી બનો, XYZ કંઈ પણ, બિઝનેસમેન બનો, વેપારી બનો, કંઈ પણ સાચી નિષ્ઠાથી કામ કરો તો જ તમારી જે મહેનત છે એ ફળશે. જો આપણામાં સાચી નિષ્ઠા નહીં હોય, આજે આપણા દેશમાં સરકાર, મોદીજી એટલી મહેનત કરે, આચાર્યજી એટલી મહેનત કરે, એટલી બધી ગ્રાન્ટો, એટલી બધી વિકાસના કાર્યો કરે છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હજી આપણે એટલી વ્યવસ્થા નથી. એનું કારણ શું? ભ્રષ્ટાચાર. જો બધા સાચા હોય, સારા હોય તો કેવી મજા આવે. આપણો ભારત દેશ સ્વર્ગ બની જાય અને આખી દુનિયામાં વિશ્વગુરુ બનાવતા કોઈ ન રોકી શકે, કારણ કે આપણી પાસે બધી તાકાતો છે. જેનું એક ઉદાહરણ આપણી સામે છે. આપણા ભારતમાં જે ખેતી ઉત્પાદન જે ચીજો બને છે, દુનિયામાં ક્યાંય નથી બનતી. આપણા ભારતની જે આબોહવા છે ક્યાંય નથી.
આપણા ભારતની જે તાકાતો છે, જેમ કે ગાય છે, આપણા ભારતની જે ગાયો છે એની જે ગવ્યની જે તાકાત છે એવું વિશ્વમાં ક્યાંય નથી. આપણે આપણી જે તાકાત છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલી રહ્યા છીએ. વધારે મારે સમય નથી લેવો, આમ તો તમે કંટાળો પણ આવતો હોય છે અત્યારે, પણ મને મજા આવી આજે તમને બધાને મળીને, એટલે વધારે સમય નથી લેવો. ટાર્જનજીને જ આપણે વિનંતી કરીએ કે પોતાનું પહેલાં પ્રદર્શન आप थोड़ा पहले तो प्रदर्शन आप कर दो और बाद में फिर आपकी बात विचार आप. जो मैं अभी मैंने आपके चित्र देखे योग के, तो स्टूडेंट भी होंगे आप योग करते होंगे, और योग में एथलीट में आप रुचि भी रखते होंगे, आपकी ड्रेस से भी लग रहा है और आपके चेहरे से भी. जो चीज़ मैं अब आपको करके दिखाऊंगा वो शायद आपने ना करी होगी, लेकिन उसे ज़रूर इसमें शामिल कर लेना, ठीक है. आपके कोच साहब से भी मैं कहना चाहूँगा, ठीक है कोच साहब, उसे कोशिश करना 2, 4, 5 और भी स्टेप मैं बताऊँगा आपको. शरीर को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे शरीर को कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में भी. आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, उससे बचने का इलाज, बीपी हाई लो, बताओ ये तो बुजुर्गों का काम है. बुजुर्गों का भी नहीं, जो शुद्ध भोजन करेगा, जिसका शुद्ध मन होगा, उसका बीपी हाई क्या करेगा. चाय से, अंडे से, मांस से, पाउडर से, डिब्बा से, क्रेटीन, प्रोटीन, और वही बाजार में बिकने वाले गंदे फास्ट फूड, समोसे, पेटी, बर्गर, कितनी गंदी चीज़ है, सड़ी हुई चीज़, कितने दिन का चून, मैदा, उसे ठंडा करके आपको खिला रहे हैं और आप उसे खाते हो. पेट में जाने के बाद वो कितनी गंदगी पैदा करता है. एक दूसरा, सट्टे खेलने की बीमारी. हमारे राजस्थान में अभी मैंने पत्र लिखवाया मोदी साहब के लिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, गवर्नर साहब के लिए, कि मैंने कहा अगर आपने ये सट्टा खेलने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, बाकी मेरे कहने से अरबों रुपए जो कमा रहे, जो केंद्र में अरबों रुपए जा रहे, एड में अरबों रुपए जा रहे, मेरे कहने से क्या हो सकता है. लेकिन अपनी फील्ड में हर इंसान को कोई ना कोई कार्य करना चाहिए. जैसे भगवान राम ने जब सीता माता जी को लेने गए, लंका पर चढ़ाई करना था, तो चेटी ने भी अपना योगदान दिया और गिलहरी ने भी दिया. तो इसका मतलब उन्होंने अपना संपूर्ण तरीका से दिया, और जो इंसानों ने जो भाग गए मैदान छोड़कर, वो कायर कहलाए और चेटी शेर दे. इसलिए तो मैं जितनी अपना है पूरा कुछ लिखित में और प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखाता हूँ, कि अगर कोई आदमी ये कहता है अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में इतनी ताकत है, इतना बल है, इतना स्टेमिना है, तो फिर मुझे हराओ भाई, मेरा मुकाबला करो. और मैं जीवन में भी इधर नहीं, मेरी लाखों करोड़ों वीडियो मिलेगी आपको सोशल मीडिया पर, लाखों करोड़ों. जब ये वीडियो नहीं था सोशल मीडिया, तो अब चला है 10 साल से चला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा भाई, 15 साल लास्ट. इससे पहले भी मैंने नंगे पैर राजस्थान में 18,000 से कॉलेज स्कूलों में अब तक जाकर जो मैं चीज़ अब दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल चीज़, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी, प्रैक्टिकल पर विश्वास करता हूँ. ऐसा नहीं मैं आया इधर भाषण दिया पार, मैं आपको दिखाऊंगा और आपको शरीर भी दिखाऊंगा कि ब्रह्मचर्य शरीर, चरित्र का शरीर, प्रतिदिन मेहनत का शरीर कैसा रहता है. और आप देख लेना पाउडर अंडा खाने वाले का शरीर, जिम में 4-4 घंटे लगे हुए, उनका शरीर देख लेना. और कितना ही कोई बलशाली हो. अभी हम गए थे, आप किधर था वो कार्यक्रम आज, खम्बालिया में, एक से एक खड़ा था वहाँ. मैंने कि अगर मेरा ये हाथ है, कसम गौ माता की, जीवन में गौ माता का प्रचार करना बंद कर दूंगा. इसे ऐसे हला के दिखा दे कोई. एक से एक मल्ल खड़ा था वहाँ, एक से एक बलवान. तो मैंने किया जमा लो फिर यार, देर किस बात की. 1 सेकंड में मैंने हिंद केसरी तक में, राजस्थान बाल केसरी 4 बार, भारत बाल केसरी अपने वजन में 65 kg में. और आज तक मैंने किसी पहलवान को, अंडा मांस खाने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, अपने शरीर पर हाथ टच नहीं करने दिया. आज तक किसी दंगल में नहीं पिटा,
इसे कहते हैं मजबूती, इसे कहते हैं 3 बजे हार्ड वर्क व्यायाम। अगर आप यहाँ बैठे हो, आपके माता पिता, आपके गुरुजन कितने चरित्रवान हैं, आपको गर्व होना चाहिए। कॉलेज स्कूलों में क्या हो रहा है मैं सब जानता हूँ। आप यहाँ लाख करोड़ गुना अच्छे हो, गुरुकुल की व्यवस्था आपको मिल रही हुई है। आपको धन्यवाद देना चाहिए अपने आचार्य जी का, जिनको आप अपना पिता गुरु मानते हो, उनको आपको बार बार धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको। मेरी बहनों, मैं सच बता रहा हूँ आप, और मेरे भाई बैठे इधर, कहीं भी ढूंढ लेना आप। कॉलेजों में जाइए आप, वहाँ गंदा काम, गलत चीज़ें। स्कूलों में जाइए, वहाँ अलग ही पढ़ाई है। प्रिंसिपल का ही पता नहीं किधर है, हाँ, अध्यापक का पता नहीं, अध्यापिका का पता नहीं। बच्चे तो अपनी मनमानी करेंगे ही। रिजल्ट निकल कर आया 0/0, फेल। आप मेहनत करो, संघर्ष करो। ये लाइट जल रही है, इसका आनंद लो और पढ़ो। पेड़ है, फल, इधर इतना सुंदर वातावरण, इसका भी आनंद नहीं ले सकती आप? घर भी जाना ना आपको पढ़ाई पूरी होने के बाद, तो फिर ये चीज़ें याद आएंगी आपको। जैसे मुझे अपने गुरुकुल की चीज़ें, जो मैं चीज़ कर नहीं पाया, वो गुरुकुल की चीज़ें याद आती है। क्योंकि समय निकलने के बाद वो पढ़ाई किस काम की? बुरा तो नहीं कह रहा, समय निकलने के बाद किसी काम का कोई चीज़ नहीं होती। आपके पास समय है, एक एक पल अपनी पढ़ाई में, अपने शरीर में, अपने माता पिता का नाम, कौन इंसान क्या बन जाए ये परमात्मा जानता और कोई नहीं जानता। मेहनत करो, आपस में प्रेम, जातिवाद एक जहर है, इससे बचकर रहो। और ईश्वर का धन्यवाद करो, सरस्वती माँ का धन्यवाद करो, अपने गुरुजनों का। अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो और थोड़ी एक्सरसाइज में आपको करके दिखाऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, बाकी ये वैसे बनाया है। आप नेट पर देखना, हत्ती रहती है, हत्ती पहलवानों की, देखिए आपने? नहीं देखी? एक हत्ती रहती है इधर, इधर, और बीच में इतनी उठी रहती है, वो सबसे मजबूत, सबसे अच्छी रहती है। लेकिन ये मजबूरी में हमें 1-2 कार्यक्रम थे, उसके लिए मजबूरी में इन्होंने बनवाई, लेकिन अच्छी है। इसी से है? कुछ देर
एक, दो। आप क्या एक इतने बैठ रहे हो, ऐसे इसका कोई लाभ नहीं है ना। देखो। आगे पीछे नहीं हुआ जाता कोई बात नहीं, देखो ऐसे बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे कर रहे हो, ठीक है। देख ऐसे गए आप, लेकिन ऐसे मत लौटा वही मेरे ऐसे नहीं, ये बस ठीक है। और आपको कम से कम 100 मारने चाहिए, प्रत्येक 100 सपाटे लगाने चाहिए आपको। बोलो 100 तो कुछ भी नहीं है, मैं 5000 लगाता हूँ यार भाई। मेरा हाथ देख, देखो मेरा हाथ, देखो राइट नहीं, बहुत खतरनाक है भाई। देख 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 ले, तो इतने जब 5,000 मैं कह रहा हूँ 5,000 मैं कह रहा हूँ 5,000 कम से कम 100 लगानी चाहिए आपको, और आपको भी 50। हाँ देख लो, 10 योग करते हो आप, बढ़िया बात है। योग से शरीर में लचीलापन आता है, ठीक है। और कोई भी पहलवान है, इतनी दंड बैठक मारने के बाद देखो मेरा इतना मैं कर लेता हूँ, कई चीजें कर लेता हूँ बेहतर, कोई अन्य पहलवान से नहीं होती, क्योंकि अन्य पहलवान एक ही एक्सरसाइज करता है, मैं हर तरीका की कुश्ती भी कुश्ती करने के बाद फिर योग भी योग करने के बाद फिर सपाटे सपाटे करने के बाद फिर रस्सा, अखाड़ा कूदना, रेस करना, पैर की अलग हर चीज करने के बाद तब बताओ, तब जाकर ये नाम बना है। कभी सोचो भाई उठ गया 8 बजे और ले लिया अखाड़िया पैर कर कर सो गए, नहीं ऐसा नहीं, वो पहलवान अलग है, ठीक है। कौन किस किस पे आई पूरी, आप पे आ गई ना है। सुबह उठने का हमारी मेरे यहाँ पर मौजूद है, आप भी, आप लंगोट आता है एक, ठीक है, आपके लिए अनिवार्य है वो, मेरे पास है। आपके पास है लंगोट, बांधते हो, वो अच्छा रहता है शरीर पे, ठीक है। उसे बांध के अच्छा पहन के टी शर्ट कपड़े पहन लो वैसे, उसके बाद व्यायाम करो, आपको बल मिलेगा उससे, ठीक है भाई, है ना। तो लंगोट लिया ना या सिवा लेना, है ना, आप थोड़ा शरीर मजबूत, 150 सपाटे, लोटी दंड, 150 बैठक, नहाए धोए कपड़े पहने और पूरे दिन पड़े। कितने 5 मिनट लगते, 5 मिनट, मुझे कितनी देर लगी, ठीक है। इतनी देर में इतना पसीना है, और जब मैं 5 घंटे करता हूँ तब पसीना बता भाई, तब कितना है, वीडियो में देख, तब कितना पसीना आएगा। अभी तो मुझे 10-15 मिनट हुई होगी, जब कितना पसीना आता होगा भाई। जूता निचोड़ने पड़ते, हर महीने जूता बदलता हूँ, हर महीने जूता बदलता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि सपाटे अब मैं 5,000 लगाऊंगा और कहीं पथरीली जगह है, रेतीली जगह है, किंकरी है, उन पर लगाऊंगा, जूते घिसेंगे ना, बस कितने ही कोई महंगे जूता हो, 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने चल जाएंगे। इसलिए तो मेरा तो थोड़ा अभ्यास में टाइट रहता है, लेकिन आप अवश्य, है ना, करोगे भाई, है ना। 10-20 और 50, 10-20 होते और 150 सपाटे आपको करने हैं, ठीक है। योग करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, जिसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे हो गई खत्म, कोई भी ऐसे। अब ऐसे देखो, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई, समझ लो उसके स्टेमिना कमजोर है, और जो सीधा है बैठा है, इसका मतलब वो शुद्ध भोजन कर रहा है, उसकी दिनचर्या अच्छी है, रीढ़ की हड्डी से ही पता चल जाता है, और तो बहुत दूर की बात। इसलिए ऐसे बैठो हमेशा, अन्यथा ऐसे बैठोगे ना उस दिन रुक कर धीरे धीरे धीरे, बस इतना ही करते रहे। इसलिए ऐसे बैठो, और आपसे मिलकर इधर आकर हमारे अर्जुन भाई आमलिया जी, हमारे आचार्य जी, और आपके गुरु जी, आपके आचार्य, आपके माता पिता के तुल्य, जिनसे आप, और आज मैं जो इधर आपको जो शिक्षा दे पाया, आपको प्रैक्टिकल, देखो ऋषि दयानंद जैसा त्याग किया हो अंडे मांस खाकर, पाउडर डिब्बा खाकर, तो मुझे बताना
क्योंकि मैं आपके सामने उदाहरण जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ। दूसरे का मैं उदाहरण पीछे देता हूँ, दूसरे का मैं क्यों दूँ भाई? मैं खुद ही उस चीज़ में हूँ, मैं दूसरे को क्यों दूँ? आप हो, आपने मेहनत करी है, आप दूसरे को उदाहरण दोगे अपना? जब आप स्वयं हो उसमें बुरा क्या है? आपने मेहनत करी है, त्याग किया है आपने, हर चीज़, भोजन को त्याग दिया आपने, बताओ इससे बड़ा त्याग क्या है? और जिस चीज़ को कोई नहीं त्याग सकता, आज के नौजवान, युवक, युवती, विद्यार्थी समझते हैं एटीट्यूड और महंगे कपड़े, जूते, यही ज़िंदगी है। मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ प्रतिदिन व्यायाम, प्रतिदिन पसीना, योग, इधर पता चलता है किसमें कितना दम है मैदान में। अब बोलने को तो कोई कुछ भी बोले भाई, जवान है उसकी कुछ भी बोल सकता है। सोशल मीडिया है आज, सोशल मीडिया पे जिनको उठना भी सही से बैठना भी नहीं आता, कैसे बैठा जाता है, वो लोग भी ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया, वो भी वीडियो बना रहे, ऐसे बैठिए, ऐसे लौटना है, ऐसे खाइए, ऐसे सपाटे, ये पता कुछ नहीं किसी को। सपाटे कहाँ से शुरू हुआ, जर्नी क्या है, सपाटे लगाने से क्या बल मिलता है, सपाटे की एक दंड बैठक में कितनी दंड बैठक होती है, इसे करने से लाभ क्या मिलता है शरीर को, कुछ केवल यूट्यूब चलाने। और हमने, मेरे नाम से हजारों यूट्यूब मिलेंगे, आप इंस्टाग्राम पर कितने पेज मिलेंगे। मैंने कभी ये ज़िंदगी में सोचा नहीं कि भाई मैं धन कमाऊँ, इन चीज़ों से पैसे कमाऊँ। जो भी मिलता है वही कहता आप यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम पे इतने पैसे, आपको इतने पॉपुलर हो रहे, ऐसे ऐसे नहीं। मेरा काम है प्रचार करने का, ठीक है। हाँ, इतना मैं मानता हूँ सोशल मीडिया जो चला हुआ है, अब टेलीविज़न तो वाले नहीं है ना इधर, है ना, उनको घूस देनी पड़ती, बहुत मोटी रकम देनी पड़ती, तब वो जाकर टेलीविज़न पर दिखाते। सोशल मीडिया है, उसका धन्यवाद देना चाहिए। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ के लिए है। अब मैंने कैसी चीज़ चलाई आपके सामने, कितना जोश आया, चलाई ना, आया ना जोश आप में। कभी हिम्मत मत हारिए, कभी टूटिए मत, कभी बिखेरिए मत। टूटने के बाद भी खड़े हो जाइए, लाख बार गिरो फिर भी खड़े हो जाओ, आपकी जीत होगी। कभी दूसरे के जैसा मत बनना, ठीक है, कभी दूसरे के जैसा मत बनो, अपना रास्ता स्वयं तैयार करो। मत चलो जाने पहचाने रास्तों पर, बल्कि बनाओ अपना खुद का एक नया रास्ता। हो सकता है लोग आज आपको पागल कहें, और निश्चित तौर पर जो देश धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करते लोग उन्हें पागल कहते हैं। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि पागल ही इतिहास रचते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, ऋषि दयानंद, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, लोगों ने पागल कहा उनको, क्या पागल आदमी, अंग्रेजों से लड़ाई मोल ले रहे हैं, हम तो अपने घर में आनंद से अपने घर में आनंद से भोजन कर रहे हैं और अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। भगत सिंह ने कहा, जब इतिहास पढ़ा जाएगा आने वाले समय में, तब हमारा नाम आदर्श के साथ लिया जाएगा, तुम्हारा कायरों में लिया जाएगा। तो उनका नाम कायरों में आता है, जो भाग गए मैदान से, भारत माता को बंधी हुई को छोड़ गए। उनका कायर, वो मर गए, खत्म हो गए। मरता तो हर कोई इंसान है, मरता है ना, पर जिंदा दिली की जिंदगी बहुत कम लोग जीते, याद रखना। शेर दिल, आप शेर नहीं हो, शेर बनो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माता कितनी बनना चाहती बताओ, हैं? दुर्गावती, शेरों वाली माँ जगदम्बा हो आप, याद रखना इस बात को। आप तो हंस रही हो, चलो कोई बात नहीं भैया, लेकिन जगदम्बा हो, इस संसार की मालिक हो आप, माँ भी हो, बहन भी हो आप, ठीक है। आप बेहतर नहीं बनोगी तो संसार बेहतर नहीं बन सकता। इसलिए आप में चरित्र, आपका शक्ति, आपका स्टेमिना, अंडा, मांस, पाउडर, डिब्बा, गंदी चीज़ों से दूर त्याग करके देखो, फिर पता चल जाएगा आपको। 1 महीने त्याग कर लो, 2 महीने, कोल्ड ड्रिंक, गंदी चीज़, 2 महीने त्याग कर लो आप, कोई भी नौजवान यहाँ पर, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेमिना, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपकी सुंदरता क्रीम लगाने से नहीं आती, याद रखना। अगर क्रीम लगाने से सुंदरता आती तो भैंस को क्रीम लगाओ। हाँ, बुरा क्या है इसमें, सुंदर हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। हमारे कृष्ण भगवान थे, अब मैं किसी को पूछ लेता हूँ, मैंने भाई यार गोरा आदमी बढ़िया काला, तो वो एकदम सोच कर कहता है गोरा, सुंदर आदमी बढ़िया, गोरा आदमी बढ़िया। तो मैंने कि फिर अंग्रेज बढ़िया थे, जिन्होंने 250 साल राज किया भारत में, अंग्रेज बढ़िया आदमी थे। हमारी माता बहनों के साथ गलत काम किया, भारत की संपत्ति लूटी, हमको, हमारे क्रांतिकारियों को फांसी लटका दिया, ऐसा मतलब अंग्रेज बढ़िया आदमी थे? आप ही तो बोल रहे हो। एक दूसरा, फिर वो बोला नहीं काला आदमी बढ़िया है। मैंने कहा तो हमारे जो कृष्ण भगवान थे वो सांवले रंग के थे, राम भगवान, कृष्ण भगवान, भोले बाबा। उन्होंने कहा गोरा आदमी बढ़िया था, तो मैंने कहा फिर तो हमारे राम और कृष्ण भगवान बेकार थे, क्योंकि वो सामने थे। बात गोरे काले की नहीं है, बात है चरित्र की, बात है ईमान की।
बात है स्टेमिना की, बात है ईश्वर भक्ति की, बात है देश के लिए समर्पित की, ज्ञानी आदमी की बात है। ना गोरा अच्छा ना काला, ज्ञानी आदमी सबसे बढ़िया, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसे पता है झूठ बोलने से पाप लगता है, गलत देखने से पाप लगता है, गलत काम करने से पाप लगता है। और तो कोई नहीं देख रहा है, यहाँ परमात्मा तो है, भगवान तो देख रहा है, मेरा अंदर जो भगवान बैठा है वो तो देख रहा है, मैं पाप ना करूँ। इसलिए ज्ञानी आदमी सबसे बढ़िया है। ना गोरा आदमी बढ़िया ना काला आदमी। चमड़ी पर कभी मत जाना, जिंदगी में इंसान के चरित्र पर जाना, ज्ञान पर जाना, उसकी बुद्धि पर जाना कि उसके अंदर है क्या चीज़। इसलिए आज यहाँ मुझे जो चीज़ें मैंने दिखाई आपको परमात्मा ईश्वर की कृपा से, और सबके सानिध्य प्राप्त हुआ। आपके आचार्य जी, गुरु जी, हमारी माताएं बैठी है उधर, उनको प्रणाम, नमस्ते। हमारी मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सभी नौजवान युवक युवती विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूँ कि आपका शरीर बलवान बने, स्वस्थ रहे, आप अपनी अकेडमी का, अपने गुरुकुल का, अपने स्कूल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐसी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको बल बुद्धि शक्ति प्राप्त हो। जय गौ माता की, नमस्ते, राम राम। मैं नहाता हूँ ना, कितना नहाया होऊंगा, कितना पसीना आया होगा, ना तो मैंने और ना मैंने शरीर आज तक टॉवल से नहीं पूछा भाई, साबु से नहाते हैं? नहीं, कोई साबुन इस्तेमाल नहीं किया। बोलो શું કારણ? आप 2 दिन, 1 सप्ताह, चलो कोई बात नहीं, 1 सप्ताह बिना शैम्पू क्रीम साबुन के रह जाओगी? नहीं, नहीं रह सकती। बड़ा अच्छा काम भाई, नहीं रह सकती। और बिना उसके, और आपने शरीर देखा अभी, देख लो, सोचने की बात है, गहराई से सोचना इस बात को। क्रीम नहीं, पाउडर नहीं है, किसी प्रकार का कोई तेल नहीं, और इतनी चीज, और इतना पसीना निकला ना है। इधर आओ और मेरे पसीने को सोओ, आप खड़े हो, इधर सोऊंगा भैया, इतना पसीना बहाया मेरे पास सोइए, हैं? अरे भाई सही तो है, इतना पसीना बहाया, इतने देर में तो आदमी इतनी स्मेल मारती है। सुनो, जो पाउडर डिब्बा खाता है, मांस खाता है, मांस छिड़ता है, ठीक है, उसके शरीर से बदबू मारती है बहुत छिड़। अब तक तो आप उठ के चली जाती, इतना मैंने पसीना, इतना पसीना बहाया है। आपको स्मेल आई? आप यहाँ खड़े हो, आप सोओ भैया, ईमानदारी से बताना है, क्या खुशबू आ रही है? बस सच्चाई बोलो, सच है? देखो, पूछ लेना भाई, किसी का और कोई शक हो, देखो इतना पसीना बहाने, इसे कहते हैं भोजन शुद्ध, अच्छी सोच। कितना पसीना आया कोई, और बिल्कुल फिट हो। 11-11 घंटे ऐसे ही एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह 3 बजे उठकर, प्रतिदिन व्यायाम। जिस दिन कार्यक्रम रहते हैं मेरे हाल में तो, और कार्यक्रमों करने के बाद फिर मैं शाम को भी करता हूँ 2 घंटे, बाकी 4-5 घंटे मैं सुबह करता हूँ। अपने अखाड़े पर रहता हूँ जब मैं पूरी दिनचर्या करता हूँ अपनी, क्योंकि अगर मैं ही कमज़ोर हो गया तो नौजवानों को प्रैक्टिकल करके कैसे दिखाऊंगा। इसलिए, और आज तक मैं बीमार नहीं हुआ। कोई मुझे जैसे थोड़ा सा बुखार हो जाता है, अगर कभी हो भी जाए, दिनचर्या बिगड़ जाती है, 11-12-1 बजे सो रहे हैं, कोई कार्यक्रम में है और 3 बजे फिर उठना है, ऐसे दिनचर्या थोड़ी बिगड़ जाए बाहर जाने के बाद, और बुखार चढ़ जाए तो शाम को फिर ख़त्म हो जाता है बुखार। सिर्फ ये सोचने से बुखार भीतर इंटर करता है शरीर में, और ये सोचता है अब मैं इस पर कब्जा करूँगा और इसे परेशान करूँगा, दुखी करूँगा, अस्पताल ले जाऊँगा इसे मैं। लेकिन जैसे ही शाम 3 बजे होती है, चाहे कितना ही मैं 3-4 घंटे में क्या हो सकता है, वो ही सोच चलने बैठती है कि कुछ भी है, व्यायाम अवश्य करूँगा। और जैसे व्यायाम करता हूँ खत्म। आज तक का रिकॉर्ड है, 1 रुपया मेरा, 1 भी रुपया, वैसे तो मैं कहीं देता ही नहीं, मतलब दुकानों पे 1 रुपया मैंने आज तक दिया नहीं। अस्पताल में मेरा 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया आज तक कहीं 1 रुपया की गोली देना भैया, तो कितनी बड़ी बात है। सिर्फ शुद्ध खान पान, आपके पास अच्छा भोजन, मैंने देखा आपका भोजन कैसा था, है इतना अच्छा भोजन। कसम गौ माता की, मैं सोच रहा था अगर मैं खाता ना, मैं सबसे ज़्यादा खाता यहाँ पर भोजन। अगर मैं भोजन करता, लेकिन मैं दूध का ही सेवन करता हूँ फिलहाल, इसलिए मैंने दूध पिया, और भोजन सबसे शुद्ध भोजन आपको मिल रहा है यहाँ। और आप बच्चे बहुत बढ़िया हो, बलवान बनो भाई। ईश्वर से, गौ माता से यही प्रार्थना है आपके लिए। और आप किसी भी मजहब जाति से हो, देखो ठीक है, किसी भी मजहब जाति से यहाँ पर बैठे हो,
मैं ना जाति को मानता हूँ, सत्य सनातन हिंदू धर्म को मानता हूँ जिस धर्म से मैं आता हूँ, और कामधेनु गौ माता को और अपनी संस्कृति को, अपने चरित्र को बस, और अपने आदर्शों को मानता हूँ। उसके सिवा कोई किस जाति से है क्या है मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि जातियों में बंटने के कारण अंग्रेजों ने राज किया। जातियों में बंटने के कारण आज उसमें केरल में जैसे जिंदा जला दिया गया, ठीक है, और भी जगह बंगाल में बहनों के साथ क्या क्या होता है वहाँ, सिर्फ जाति के कारण, और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। अन्यथा इंसान, एक अकेला इंसान 100 पर भारी पड़ता है। इसलिए जातियों के कारण तो जातियों से दूर रहे, आपस में प्रेम रहे। जय गौ माता की। हमारे यहाँ तहसील के नायब मामलतदार है। આપણે જયરાજસિંહજી જાડેજા, મેં કીધું ને ભગવાન ગમે ત્યાં મોકો આપે, સહયોગ આપણે સંજોગ ગમે ત્યાં લઈ જાય, પણ ઈમાનદારીથી જે કરે એ કરવાનું. એ પોતે એસટીના ડ્રાઈવર, ડેઈલી કેશોદથી અમદાવાદ સુધી બસ ચલાવે, અને નોકરી જેવી પૂરી થાય એવી એ સીધા સેવામાં લાગી જાય ગૌ માતા. ખાલી ગૌ માતા નહીં, જીવ માત્ર. કોઈ પણ એમ કહે કે ભાઈ અહીંયા કંઈ પણ તકલીફ છે, નંદી મહારાજને તકલીફ છે, ગાયને તકલીફ છે, તો ઓન ધી સ્પોટ એની આખી ટીમ લઈને પહોંચી જાય. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે બળદની થોડી કપરી પરિસ્થિતિ છે, ટ્રેક્ટરો આવતા, તો ઘણા બધા બળદો છે એ બિચારા બિનવારસુ થઈને રસ્તે રખડે છે, પ્લાસ્ટિક કચરો ખાય છે. એને એવું મનમાં થયું કે ભાઈ મારે બળદો માટે કંઈક કરવું છે. અત્યારે કેશોદમાં 550 બળદને આશ્રય એમને આપ્યો. એવી બીજી પણ 10-15 સંસ્થાઓ છે, એમાં પોતે બેકગ્રાઉન્ડ, પડદા પાછળ ખૂબ મોટો સહયોગ, ખૂબ મોટો ફાળો આપી રહ્યા છે. અહીંયા આપણે આપણા દ્વારકા જિલ્લામાં ખંભાળિયામાં જે એનિમલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, કદાચ તમે જોતા હોય તો વિડીયો બધા રેસ્ક્યુ કરતા હોય, તો એમનો બળદ આશ્રમ બની રહ્યો છે. એમાં પણ મુખ્ય મેન જે કાર્યકર્તા છે એ આપણા જયદીપ બાપુ છે. ખાસ કરીને આપણે દ્વારકામાં આ વર્ષે ઘણી બધી અતિવૃષ્ટિ થઈ. આપણે જોઈએ ને બધા વિડીયા, ગાડીઓ એને ભૂલી મોકલી હતી, તાવતે વાવાઝોડું આવ્યું, અહીંયા પણ એટલી બધી સેવાઓ એને કરી. લગભગ 227, હું તો 27 કહું, 227 ભૂકો ભેગો કર્યો ગાડી, અને રાતને દિવસ મહેનત કરે, રાતને દિવસ. એટલે આવા જે વ્યક્તિ છે સેવાભાવી, આવા વ્યક્તિ છે, એમાંથી ઘણું બધું આપણે શીખી શકાય. એવા જ અમારે નામ હઠ્ઠીસિંહજી સિસોદિયા છે, અને પોતે એક ગૌપાલક છે, અને લગભગ 10-12 વર્ષથી આ ગૌ આધારિત ખેતી કરે છે. આપણા માટે ખરેખર ગૌરવ લેવાથી. એની ઉંમર અત્યારે કેટલી ઉંમર છે? હા, તો 12 વર્ષ પહેલા, એટલે જ્યારે એમની ઉંમર કેટલી હશે? 22 વર્ષની હશે ને, તો ત્યારે એમને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ મારે ગૌ આધારિત ખેતી કરવી જોઈએ. પહેલા શરૂઆતમાં ખૂબ એમને સંઘર્ષ પણ કર્યો પરિવાર સાથે બધી રીતે, પણ એમને સંકલ્પ લીધો કે ભાઈ મારે કંઈક કરવું છે. તો આજે આ દરજ્જે છે. સવારે ઉઠીને અમારે ઘરે મતલબ અહીંયા વ્યવસ્થા હતી બધી, તો હું ટમેટા લઈ આવ્યો, કાકડી લાવ્યો, ગાજર લાવ્યો, એવું બધું સલાડ ને એવું વધારેમાં વધારે ગાયનું દૂધ. અત્યારે શું છે, ટ્રાવેલિંગમાં આપણે હોઈએ તો થોડુંક સલાડ ને એવું લઈ લઈએ, બાકી એના વર્કઆઉટમાં હોય તો ગાયનું દૂધ અને ગૌમૂત્ર વધારે. બીજો એક પ્રશ્ન હું કહું છું, ગૌમૂત્ર છે એ સીધું? હા, સીધું, પણ આપણે સીધું ન પી શકાય. એ તો સીધું ખોબેથી જ પીએ છીએ, એક દિવસનું 1 લીટર ગૌમૂત્ર પીએ છે, પણ આપણે એટલી નહીં, આપણે જેટલું પચાવી શકીએ એટલી માત્રામાં પીવાનું. એટલે એવું નહીં કે દેશી ચાર્જર એટલું પીએ છે આપણે પી શકીએ, એવું નહીં, કારણ કે એ તો 5000 સપાટા મારે, તો આપણી પાસે એવી તૈયારી હોવી જોઈએ. એટલે ઘણું બધું છે જાણવાનું. કોઈને કંઈ બીજો કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કંઈ પણ. રેગ્યુલર રૂટીન શું છે?
दिनचर्या 3 बजे उठना, 3 बजे उठ के अपना पानी पीना, फ्रेश होना। उसके बाद फिर 3 बजे उठना, 3 बजे उठकर चालू चालू करो स्विच। ऐसे बोलो कोई बात नहीं। 3 बजे ऐसे बोल दो, 3 बजे उठकर और 3 बजे उठकर पानी पीना, पानी पीकर 10 दिमाग पर नाम करना, फिर पानी पे फ्रेश हो आकर और लंगोटी बांध कर फिर मैं निकलता हूँ रेस के लिए। रेस करने के बाद, रेस आने के बाद फिर मैं सीधा जाता हूँ गौ माता के पास। गौ माता के पास जाकर 1 घंटा गौ माता की सेवा करता हूँ। ऐसी बात नहीं ऊपर से ही सेवा करी यार, फिर मैं मेहनत करने चला गया। उसकी साफ सफाई भी, गोबर भी उठाना, गोमूत्र भी पीना। गोमूत्र एक्सरसाइज से पहले मैं धरता हूँ तो गोमूत्र धर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं लंगोटी बांधता हूँ, फिर मैं अखाड़ा खोदता हूँ, बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं उनको सिखाता हूँ। और उनको सिखाने के बाद 8 बजे तक बच्चों को सिखाता हूँ। उनके बाद फिर वो अपने कॉलेज में जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, चले जाते हैं। फिर मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, सपाटे, योग, व्यायाम जो भी है। 2, 3, 4 पहलवान रह जाते हैं, उनसे मैं कुश्ती का उनको सिखाता भी हूँ और प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ अपनी। बाकी अब तो मैंने छोड़ रखी है, लेकिन फिर भी काम कोई कहने लगे उठने के लिए तो चलो भाई, इसलिए मैं और 11-12 बजे तक मेरा ऐसा रूटीन रहता है। लेकिन बीच बीच में मैं सबसे पहले गोमूत्र पीता हूँ, ठीक है। स्टेमिना के लिए, आप मेरी बहनें बैठी हो यहाँ पर, स्टेमिना आपको बढ़ाना है, रोगों से मुक्त रहना है। देसी गौ माता का गोमूत्र अमृत है, ठीक है ना, लेकिन लिमिट। उसे आप चेहरे पे लगा सकती हो, नहा रही हो आप पानी में, उससे आपका कोई दाद, खाज, खुजली कुछ नहीं होगा जीवन में भी, अगर आप पानी में थोड़ा सा गोमूत्र डालो। एक दूसरा, सिर में जो आपके सफ़ेद बाल आ जाते हैं, उसके लिए, बालों के लिए सबसे बेहतरीन, शैम्पू मत लगाना, गोमूत्र से आप धो इनको, अन्यथा बाल सफ़ेद हो जाएंगे और बालों की शक्ति खत्म हो जाएगी जितने शैम्पू लगाओगे। शैम्पू अंडे से, केमिकलों से बनते हैं। गोमूत्र से देखो मेरे बाल, और मेरी पुरानी वीडियो देखना, कितने घने बाल काले मेरे, देखो कैसे बाल। और कोई कुछ भी तेल से, मतलब केवल गौ माता घी लगा लेता हूँ, लेकिन और कोई चीज़ नहीं लगाता अब तक। इसलिए तो मेरी ये दिनचर्या रहती है, ठीक है। 12 बजे फिर मैं नहा धो कर अपना गौ माता का दूध पियो, और सुबह से शाम 24 घंटा मेरा 5 लीटर दूध रहता है भाई। क्योंकि मैं एक चीज़ पीता हूँ, अगर दूध ना मिलता है कहीं तो मैं फल या फिर ड्राई फ्रूट, मजबूरी में, बहुत मजबूरी में फल, ड्राई फ्रूट और सलाद का सेवन करता हूँ। और नाइनिस जो अपना प्राकृतिक गो खेती से बनती है, उसे करने के बाद फिर मेरा कहीं कार्यक्रम रहता है, या फिर स्टूडेंट बच्चे मेरे पास रहते हैं, उनको मैं, जो मैंने आपको बताया, ध्यान बैठाकर उनको शिक्षा देता हूँ। 2 बज जाते, 2 बजने के बाद फिर मेरी 3 घंटे के फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उनको मैं ऐसा सिखाता हूँ। रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना। आज के लिए तो क्षमा चाहता हूँ, आप भी, मैं भी, आज की तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन जल्दी भोजन किया। भोजन करने के बाद तुरंत मत लौटो, क्योंकि वो पचता नहीं। भोजन करो, इधर ही घूमो, या फिर कहीं थोड़ा इधर अपने एरिया में घूमना, दूसरे के में नहीं, इधर ही घूम लेना। और घूम के कम से कम 20 मिनट बाद आप लौट जाओ जो आपने भोजन किया है। कौन सी करवट लौटती हो बताओ, कौन से करवट लौटते हो, कौन से करवट लौटना चाहिए, कई ऊपर पूरा खेल बोलो। हाँ, तो लौटने से पहले पैर हाथों को धोकर भगवान का भजन करके आराम से लौटिए। सुबह जल्दी उठिए, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आंखों की रोशनी बनी रहेगी। और जिन बहनों का, देखो मेरी अपनी बहनें इसलिए बता रहा हूँ, जिन बहनों पे चश्मा चढ़ी हुई है, हंसो मत, कोई बात नहीं, आप मेरी बहनों, जिन बहनों को चश्मा चढ़ी हुई है, आप बेशक कोई नंबर चढ़ रहा हो कि जीवन भर चश्मा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अभ्यास और रूटीन और शुद्ध भोजन हर बीमारी को दूर कर देता है। बड़े बड़े योद्धाओं के भी बीमारी लग गई थी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर उस बीमारी को, मौत की बीमारी को हरा दिया और जीत प्राप्त करी। इसलिए आप प्रतिदिन सोने से पहले बिल्कुल ठंडा पानी, ताज़ा, अपनी आंखों को बार बार 10 बार मुंह में कुल्ला करके पानी राखिए भीतर, और 20 बार 10 बार धोकर उसके बाद भगवान का भजन करके सो जाइए। 1 महीने तक ऐसा कीजिए। गोमूत्र से सिर धोना, शैम्पू से मत धोना, उससे भी आपकी वीकनेस आती है। फल खाना, जूस पीना, गलत चीज़ खाना बंद कर दो, आपको देखना आप बिल्कुल इनको फेंक दोगी। मेरे बाद आया आपसे, आप कह रही होगी ऐसी अब हम बात कर रहा, अब हम बात नहीं कर रहा भाई, फिर भी आऊँगा मैं इधर 1 साल बाद, 2 साल बाद, फिर भी आऊँगा मैं इधर, आपसे देख लेना। अगर आप मेरी दिनचर्या
जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप ऐसा आप मानोगे तो निश्चित तौर पर आपकी बीमारी सारी दूर होगी। सोने और जल्दी उठिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, इस पर हम सारा कुछ करते हैं। और ऐसी मेरी दिनचर्या मैंने आपको बताया भाई ऐसी रहती है, लेकिन 5000 सपाटे उसमें मुझे 4 घंटा लगते हैं। एक ही रूटीन था ना, है ना, ऐसे ही तो भजन में चला देता हूँ, भजन चलते रहते हैं ब्रह्मचर्य के। और ये सपाटे 5000 प्रतिदिन, उसके बाद में लोटी दंड रस्सा ये चीज़ें भी अवश्य करता हूँ। और आपकी दिनचर्या आपकी बेहतर बनाने का कीजिए, क्योंकि युवा हो नौजवान। और कोई और किसी भाई का कितने सालों तक ये हैं? रूटीन फॉलो कर कितने सालों तक? मैं काल से मुझे 16-17 साल हो गए 16 कंटिन्यू। हाँ, कभी अगर कभी मेरा दिनचर्या बिगड़ गई हो उसके लिए नहीं कह सकता, उसके लिए मैं नहीं कह सकता जो मेरी दिनचर्या बिगड़ गई होगी, लेकिन प्रतिदिन मैं ऐसा ही करता हूँ। कहीं भी इनके साथ हूँ, अभी तो मैं गुजरात में हूँ, इनके साथ इनको पूछो मेरी रूटीन क्या है दिनचर्या। 3 बजे उठना, 3 बजे उठना और वही पसीना बहाना, मेहनत करना। ठीक है ना? धन्यवाद। બીજી એક મારે વાત કરવી છે, આપણે ઘરે પોદરો હોય ને ગાયનો, કેટલાને બધાને સૂપ ચડે છે, ચડે? તો મતલબ કે 2-3 દિવસે ગાયના ગોબરથી સ્નાન કરે, આખા શરીરમાં ગાયનું ગોબર અને ગૌમૂત્રનું લેપ કરી અને આખામાં ચોપડે. કદાચ તમારે વિડીયો જોવો હોય તો દેશી ટાર્જન લખજો, એમાં ઘણા બધા વિડીયો છે, એમાં તમને જોવા મળશે. और उसमें करता हूँ तीसरी चीज से नहीं, आप देवता है, देवता याद रखना भाई, रियल में बहुत सज्जन व्यक्ति है, बेहतर व्यक्ति है, अच्छे है, और उनका आदर भाव से ही आप शिक्षा, उनका आशीर्वाद आदि शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। हमारे गुरुजी ने कहा था भले ही तू पढ़ता नहीं है, ये तेरी बात गलत है, मैं पढ़ा नहीं, बहुत कम गुरुकुल में दुबक जाता था। और जब गुरुजी मुझे देखते देखते गुरुकुल की छत पर जाकर या फिर गौशाला के पीछे जाकर देखते थे, ये क्या कर रहा है, मैं खड़ा बोल रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे वहाँ पर, कोई हवन इकट्ठा कर रहा है, कोई ओम मूल सुबह का मंत्र चल रहे हैं और मैं उधर मेहनत में लग रहा हूँ। तब गुरुजी ने मेरी ये दिनचर्या काफ़ी मुझे डांटा और फिर बोले गुरुजी कि अगर इतने भी ये पढ़ रहे हैं, इनसे भी अगर बेहतर बनना चाहता है, मैंने गुरुजी इनसे बेहतर कैसे बन सकता हूँ, ये तो पढ़े लिखे, मैं गवार हूँ और मैं तो अन्य मेहनत करता हूँ। अब ये तो जब कोई इनसे भी बेहतर अगर बनना चाहता तो एक बात याद रखना, जिस गुरु से, जिस आचार्य से तू शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसका इतना मान सम्मान करना कि उसे परमात्मा समझना, भगवान समझना उसे। और आदि शिक्षा ये इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी है, इनकी धरी रह जाएगी, तू पास जाएगा। और आज सच में सच बता रहा हूँ आपको कि अपने गुरुकुल का नाम और आचार्य जी का नाम, आचार्य जी 20,000 आदमी में नहीं 20 लाखों में भी ये कहते हैं, लाखों बच्चे पढ़ाए मैंने गुरुकुल में, कोई काम नहीं आया, अरे देसी टार्जन काम आया। और देसी टार्जन ने गुरुकुल का, मेरा क्षेत्र का, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया अकेले। और जबकि लोग उसे कहते थे अरे यार क्या है, जब देखता हूँ गाय के पीछे गाय गाय गाय, जब देखता हूँ मेहनत, ये तो पागल हो गया, ये तो मेहनत करता रहता है। कभी छत पर गुरुजी इतनी पसीना बहा रहा है, गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समय बताएगा भाई, मैं उससे पहले नहीं कह सकता, समय बताएगा, और समय ने बता दिया। ईश्वर की कृपा से आज मुझे लाखों करोड़ों लोग, हर कोई नेता अभिनेता, दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, इज्जत सम्मान हर कोई जानता है। 5-5 करोड़ की दुनिया भर के ऑफर आ रहे, इतना लोग मान सम्मान देते, लाखों करोड़ों वीडियो इंटरनेट पे, उनका ये भी पता नहीं है कहाँ से कारण है उसका, उनके अंदर ईर्षा रही, अहंकार बना रहा कि हम इतने पढ़े लिखे, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ही बेहतर हो, दूसरा कोई इंसान बेहतर नहीं है, तो ये आपकी भूल है। जैसे हाँ हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, इसमें हर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, हम गवार हो सकते हैं, हर कोई इंसान गवार नहीं है, और गवार ही इंसान इतिहास रखता है। गवार गाय का अर्थ है इसमें, गवार मतलब गवार आदमी ही इतिहास रचता है, और अपने आप में पागल होकर कार्य करना पड़ता है। अगर आप बुद्धिमान बनोगे ना कि कोई मुझे देख रहा है, एटीट्यूड से रहूँ, इससे बोलूँ ना, और मैं अपनी क्षमताएं दिखाऊँ ना, जैसे आप हो, जैसा कमरा मैं ऐसे बाहर रहूँ, बस मैं ऐसा ही रहता हूँ भाई। और आपके कई उद्योगपति, गुजरात के कई उद्योगपति अपने चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे अपने अंदर तो कोई खूबी मुझे दिखाई देती नहीं कि अपने अंदर है। बाकी कई उद्योगपति है अहमदाबाद में,
जो अपने चरण स्पर्श गुरु जी, आप एक बार अवश्य हमारे घर, हमारे फार्म हाउस पर एक बार अवश्य आया करो। कारण क्या है इसका? सिर्फ यही, और मैं पढ़ा नहीं, लेकिन आपने जो ज्ञान देखा ये प्राकृतिक ज्ञान है, औलिक ज्ञान कहते हैं जिसे, मतलब ईश्वरीय ज्ञान मिला मुझे। मैं 24 घंटा तक आपको नई नई बातें बता सकता हूँ। बोलो, मानती हो गौ माता की भक्ति को? 24 घंटा तक तुम मुझे बता दो, चलो इतने पढ़े लिखे हो, इतनी चीज़ यहाँ पर कोई भी इतने पढ़े लिखे हो, ब्रह्मचर्य के बारे में मुझे 20 मिनट बता दो, मान जाऊँगा मैं तुम्हें, जीवन भर गुलामी करूँगा। 20 मिनट ब्रह्मचर्य के बारे में ज्ञान दे दो मुझे, और मैं 24 घंटा 41 दिन दे सकता हूँ आपको। और जो रिपीट एक बार में बात कर दूंगा, मैं दोबारा नहीं करूँगा, देख लो। और पढ़ा नहीं मैं, इसे कहते हैं गौ भक्ति। हाँ मैं पागल हूँ, गो भक्त हूँ, लेकिन देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ें बनाई भाई, मैं 10 लाख रुपए ले सकता हूँ काम एक कार्यक्रम के। मैं अखाड़े से अपने से 5 लाख रुपए लेकर कार्य कर सकता हूँ। बंदे के दुनिया भर के फ़ोन आते हैं कि भाई यार इतना कार्यक्रम गुरु जी कितने पैसा रहे से। अरे मैंने पैसा नहीं पाई है, मैं तो निःशुल्क कार्य करता हूँ। 5 लाख रुपए एक कार्यक्रम पे ले सकता हूँ मैं ना। मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, अपने कर्म पर विश्वास है। फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? क्यों पैसे लेने तो मैं और ही चीज़ से ले लूँगा। मुझे कॉलेजों में, स्कूलों में प्रचार कर, गुरुकुलों में अच्छे काम के प्रचार के लिए क्या मिलेगा? पैसे तो बहुत कमा लूँगा। दुनिया भर की चीज़ें, एक चीज़ की सेल करूँगा, एक चीज़ का ऐड दूंगा, जूता लत्ता कपड़ा के 1 करोड़ रुपए वहाँ से ले लूँगा। लेकिन ये मेरा काम है, जो मैं गुरुकुल में आने वाले समय में लोग, आप भी मेरा कहीं बता सको मेरे बारे में कि निःशुल्क कार्य ऐसा भी रहता है। बंदा इतने हाई लेवल पर इतनी चीज़ मिलने के बाद, इतना ऊपर पहुँचने के बाद वो 0/0 देखा है रे हमने। टार्जन तो हमने ऐसे देखा यार, बिल्कुल ही ऐसा था, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं देखा हमने तो उसके अंदर। और मुझे बिना आचार्य जी ने, मैं तो नहीं कह रहा था, गो आधारित प्राकृतिक खेती का पूरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया उन्होंने। और भी कई चीज़ों का, मैं नशा मुक्त राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, कई चीज़ों का रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर कभी भी लोग कहते हैं यार हंसते यार, कमाल, तेरे जैसे बढ़िया जूता बढ़िया कपड़ा हो, अच्छी गाड़ी यार, बढ़िया घूम यार। मैं ना, गलत, ऐसा नहीं। अपने अंदर ना एटीट्यूड था, ना है, ना रहेगा। लेकिन हाँ, स्वाभिमान आदमी बहुत हूँ, स्वाभिमानी। जैसे कि कहीं आदमी अगर नजरें, कोई भी आदमी मेरा प्यारा है, कोई भी नजरें चुरा रहा है, समझ लेना मेरे खिलाफ है वो, मेरी बात नहीं मान रहा। अपना कहीं अनादर हो रहा, आदर हो रहा, मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ भाई। चाहे मेरा घर हो, गुरुकुल हो, कोई उद्योगपति हो, अमीर हो, गरीब हो, मैं इस बात को नहीं मानता। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका मैं अपमान करूं, चलेगा क्या? मजाक ही कर दूं मैं आपके साथ, गलत मजाक, सुनोगी क्या? फिर कितना बुरा लगेगा। इसलिए हर इंसान की इज्जत करो, मजाक कभी मत करो किसी से। हो सकता है मजाक में ऐसी बात निकल जाती है वो सच हो जाती है कई बार। अपमानित मत करो किसी को, नीचा मत दिखाओ, नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करो भगवान से कि वो भी कामयाब हो, मैं भी हूँ, हम भी मेहनत कर रहे, वो भी हो। इसमें बुरा क्या है? अगर मैं भगवान से भक्ति करूं और कहूं पूरा विश्व स्वस्थ और खुश रहे, मेरा क्या गया इसमें? भगवान कहेगा रे कितना बढ़िया आदमी है, सबकी समृद्धि के लिए, सबकी लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा है। और मैं कहूँ भगवान मेरी जेब भर दे, मेरे परिवार की जेब भर दे और मुझे स्वस्थ रख, ऐसा नहीं होने वाला, नहीं रखेगा वो। इसलिए सबकी आप परमात्मा से प्रार्थना किया करो, ठीक है? ठीक है भाई, और कोई सवाल आपका? हैं? क्या आपका गुरुकुल अखाड़ा? अखाड़े तो निजी अखाड़ा में, निजी अखाड़ा है मेरा नागर चौधरी, आपने सुना होगा, नागर चौधरी है। और उससे भी पहला है अलवर राजस्थान जी। और मैं निःशुल्क, अगर मैं 100 रुपये भी लूँ ना, 100 रुपये भी, अब तक मैं अगर किसी फ्रेंड से 100 रुपये भी लेता, ठीक है, 100 रुपये से मैं कम से कम 5 करोड़ रुपये अब तक ले लूँ। 5 करोड़ हो जा रहा, 100 रुपये से बता रहा हूँ, 100 तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं कोच, और कुछ भी नहीं मिल रहा उनको वहाँ पर अखाड़े पर, और फिर भी रहते अखाड़े पर। मजबूरी है, मैंने कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाया,
ना मैंने कोई, हो सकता है मैंने जो कार्यक्रमों में से मुझे पैसे मिलते हैं कई बार 30,000, 21,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी जितने भी, वो मैं पैसे वहीं खर्च करता हूँ भाई, क्योंकि मैं 1 रुपये की टॉफी नहीं लेता और 1 नया रुपया मैंने अपने घर नहीं दिया, समझ, 1 रुपया नया मैंने अपने घर नहीं दिया अब तक, क्योंकि घर की समस्या घर वाले जाने, मेहनत करो और कमाओ और करो, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है, और मैं किस तरफ क्या कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ भाई यार। अगर 1 रुपया गलत इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन जितना भी मुझे पैसा मिलता है मैं उनकी लंगोट भी 80-90 रुपये, 150 तक की लंगोट आती है, जोंगी आती है 500 रुपये की, उनका भोजन, और मैं चाहता हूँ कि मतलब गरीब जिनके पास वो चीज़ें जो चीज़ नहीं है, मैं भी उस हालात से गुजरा हूँ जिन हालातों में आदमी हथियार छोड़कर भाग जाते हैं, मैं उन हालातों में भी डटा रहा और आगे बढ़ा, और अकेले के दम पर, खुद के दम पर झंडा गाड़ दिया भाई। बस इतना, मैं ये आखिरी लफ्ज़ है मेरे, इतना कहूँगा कि अकेले के दम पर, बंदे को भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं, भीड़ नहीं बचाएगी आपको, याद रखना। कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को बचाया क्योंकि वो उसके योग्य थे। कौरव कितने थे? हैं? पांडव। जीत क्यों हुई? क्योंकि वो सत्य पर अडिग थे, और कृष्ण भगवान सत्य के पक्षधर है। अगर आप सच्चे हो, कृष्ण भगवान आपके साथ खड़ा है, अगर आप झूठे हो तो आप तो उनके ही साथी हो, फिर किसके? कौरव। इसलिए सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य ही जीवन का आधार है, सत्य ही सच्चाई का आधार है, और सत्य से ही हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सत्य की जब जीत होगी जब बल होगा। आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, मेरे अंदर ताकत थी, शक्ति थी, आपको प्रदर्शन दिखा दिया, ठीक है, करके दिखा दिया भाई, आपकी संदेह दूर कर दिया। मेरे अंदर ताकत नहीं होती, मैं सिर्फ बोलता ही बोलता, बताता ही बताता, इतनी ताकत और ऐसा शरीर और ऐसा स्टेमिना रहता है, तो वो चीज़ सिद्ध नहीं होती, कोई नहीं मानता उसे, आप भी नहीं मानते। मेरे जाने के बाद आप ये कहते कह कर जाता रहा है, आया, भाषण दिया, चल दिया, अब नहीं बोलोगे आप तो मैं करके दिखाए भाई, ठीक है। જય હિન્દ, જય ભારત. સર્વ મહેમાનોને મારા નમસ્કાર. અને જેમ કે સરે જે મને શીખવાડ્યું એમ ખૂબ જ મજા આવી, અને સરે જેટલી માહિતી દીધી કે આપણે યોગ અને ધ્યાન મેડિટેશન કરવાથી આપણા શરીરના કેટલા ફાયદાઓ થાય છે, અને અત્યારે આપણા જેટલી નાની નાની બીમારી છે તે વધી રહી છે, તો એનાથી આપણે બચવા માટે, અને જે ગાયોનું કીધું એને ખૂબ જ મજા આવી કે ગાયોની જે આપણે દૂધ અને ગૌમૂત્ર, એ ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. અને પુરુષાર્થ એવા તપોવન વિદ્યાલય તરફથી હું સર્વ મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. આજે કસરતનું કેટલું મહત્વ છે, કૃષ્ણારામજી મહેનત કરાવે છે દરરોજ, લાગે સમજાવે ને કેટલું જરૂરી છે. વાળાને તો કે ઓછી હોય છે કસરત, સાહેબો વધારે કસરત કરાવે છે, ગણિતની, વિજ્ઞાનની. लेकिन काजल जी यहाँ 2004 स्वामी धर्मबंधु जी से संपर्क हुआ, तभी से योग का महत्व है. सभी बच्चों को कंपलसरी है, सुबह 5 बजे उठते हैं सभी, 5 से 15 मिनट उसकी जो सोशियारी क्रिया रहती है, बाद में 30 मिनट कंपलसरी उसका रहता है. आज 2003 से कंटिन्यू है. पहले कोविड से पहले 6 साल पहले तो सुबह शाम दोनों टाइम थे उसकी व्यायाम कंपलसरी था. लेकिन अभी ये जो जनरेशन है वो व्यायाम में उसकी नहीं रुचि नहीं रहती, वो बोलते हैं कि हमको ज़रा सोने दीजिए, इसलिए कम हो गया है. लेकिन वापस शुरू करेंगे दोनों टाइम. कितने लोग तैयार हैं दोनों टाइम कसरत के लिए? मैं इधर ही रहता हूँ. अच्छा, वेरी गुड, वाह. आप दोनों टाइम करेंगे तो यहाँ आएंगे. તમે એમની વાતમાં સાંભળ્યું કે જે સારું કરે છે એના માટે બધી જ શક્તિઓ કામ કરે છે, પ્રકૃતિ એના માટે ખૂબ સપોર્ટ કરે છે.
આજે નિસ્વાર્થ એ આખા વિશ્વને જો ચેલેન્જ આપી શકતા હોય એ વ્યક્તિને કંઈ ઘટે, માંગે એ મળે. પણ એમણે જે કુદરતી શક્તિ મળી છે એ શક્તિનો એ સદુપયોગ કરે છે અને એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે એ પોતે પોતાનું જીવન જીવે છે. નહીંતર આવી સેલિબ્રિટી હોય તો એને ચેક સુરક્ષા હોય હે, અને એવા જો કોઈ આવી જાય તો આપણે પાછા એને ફોલો કરીએ. પણ સહજ રીતે અહીં આવે હે, કોઈ આપણે કયા વગર, આયોજન વગર અને સામેથી આપણે મળવા માટે આવે તો આપણે એમની વેલ્યુ નથી સમજાતી. આ આપણા ઇન્ડિયનની માનસિકતા છે. આજે એક સેલિબ્રિટી, વર્લ્ડની સેલિબ્રિટી તમારી વચ્ચે છે. આવા લોકોને મળવું પણ મુશ્કેલ છે. તમે એમની સામે બેઠા, એમની સાથે કસરત કરી તો તમને એમની ઉર્જા મળી છે. ક્યાંક ને ક્યાંક 8-10 વર્ષ પછી તમને એમનો ખ્યાલ આવશે કે ઓહ, આમની સાથે તો અમે સ્ટેજ ઉપર અમે સપાટા કર્યા. હા, તમે ગૌરવ લેતા હશો. એવા લેવલની વ્યક્તિ અહીંયા આપણી વચ્ચે છે. फरीथी पुरुषार्थ और तपोवन परिवार की ओर से हम आपकी बहुत बहुत आभारी हैं. ये पुरुषार्थ संस्था है यहाँ, और यहाँ से 6 किलोमीटर आगे तपोवन संस्था है. ये पूरा ये डिस्प्ले इसका है, ये पहाड़ है. ये जो टेंट है, टेंट में बच्चे रहते हैं, आर्मी के टेंट है. और यहाँ कुटीर है चारों वेदों के नाम की, तो कुटीर में भी बच्चे रहते हैं. ये पोस्टर जो बनाया है वो तपोवन का है, तो वहाँ भी बच्चे रहते हैं. यहाँ जो बच्चे हैं इसमें लड़कियाँ वहीं रहती है तपोवन पे, और वहाँ से यहाँ आती है. लड़के लोग अभी यहाँ से आगे जो हॉस्टल है वहाँ जा रहे हैं. और अखाड़ा के बारे में आपने 2-3 बार बोला है कि हम अखाड़ा में जाके जो करते हैं, क्या करते हैं, गोदते हैं, ऐसा कुछ बोला है. तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये क्या है अखाड़ा, तो थोड़ा. ये मिट्टी का रहता है और हमारी संस्कृति है वो पहलवानी की. अच्छा, जैसे कि 20 फुट में भी, 20 के एरिया में भी, 40 फुट में भी बना दिया जाता है. अगर कम पहलवान है तो कम का, ज़्यादा है तो मेरा अखाड़ा 40-22 फुट का है. तो उसमें प्रतिदिन हम गोदते हैं उसे. उसमें दूध, हल्दी और गुलाब की पत्ती, ऐसी चीज़ें डाली जाती है. उसे हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं. अच्छा, हाँ, उसमें भीतर जो हमारी कुश्ती, दाव पेच हम सीखते हैं. अखाड़ा इसलिए रहता है कि उसमें दाव पेच हम बेहतर तरीक़ा से सीख सके, और उसकी मिट्टी की जड़ से हम जुड़ सकें और हमारा शरीर बलवान बन सके. इसलिए जो फावड़ी रहती है हमारी, उससे जैसे हम गोदते हैं, उससे शरीर के लिए, और अखाड़ा प्रतिदिन गोदने के लिए. साल रहती है इधर रस्सा डालकर उसे घुमाने के लिए. इसमें पानी भी साथ में रहता जी, है. पानी भी डालना पड़ता है उसमें, गर्मियों में, सर्दियों में बहुत कम. और मिट्टी कौन सी रहती है? मिट्टी ज़्यादातर अपनी भूडा, अलग मिट्टी रहती है अखाड़े की वैसे. अच्छा. और पूजनीय भी रहती है, पूजते भी उसे, धूप करते हैं पहले उसकी, फिर उसके भीतर अखाड़े में हम जाते हैं, हाथ मिलाते, फिर कुश्ती लड़ते हैं. બનાવો છે ને અખાડો? હે? દરિયાની. સરસ, ધન્યવાદ. पर ये आज ये हमारे सेलिब्रिटी आई है, इसको पूरा यश अर्जुन भाई એ પણ કમ નથી. હવે આ બંને લોકોના સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વિડીયો છે. અમારે સંપર્કમાં અમે બંને ઓછા આવીએ છીએ, ટેલિફોનિક જોડાયેલા છે. પણ કિસાનો માટે, ખેડૂતો માટે, ગાયો માટે. એમ તમારી ઉંમર કેટલી? 28. અને કેટલા વર્ષથી આમાં? 10 વર્ષથી ગાયો માટે એના કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય કે જે એમના હિતાર્થ છે, એવા પ્રશ્નો માટે સતત જજુમે છે. અમારો વિષય એજ્યુકેશનનો છે, એમનો ખેડૂતો અને કિસાનોનો છે, એટલે બહુ ભેગા નથી થતા. પણ એણે બરાબર પોતે તન મન ધનથી, એવું કંઈ આગળ પાછળ છે નહીં, આગળ પાછળ જેની પાસે બધું છે એ કંઈ આવું કરતાય નથી. આ હડકતું લેતાય નથી હોય.
અઘરું છે આમાં ટકવું એમ. એટલે એ માટે ખરેખર અર્જુનભાઈ એમને પણ આપણે અભિનંદન આપીએ. એમની સાથે બંને યુવાનો એમનો પણ આજે પહેલી વખત સંપર્ક થયો છે. તો આ મેસેજ તમે પણ તમારા પરિવાર સુધી પહોંચાડજો. આપણે ખેડૂતના દીકરા છીએ અને હમણાં એની પહેલાં પણ અહીંયા પ્રફુલભાઈ સેન્જરી આવ્યા હતા. તો પ્રફુલ બાપા પણ પોતાનું જીવન આખું એમને આમાં આપ્યું છે. આવા કેટલા બધા લોકો છે અને ત્યારે ખેડૂત કંઈક અત્યારે સારી રીતે કંઈક કરી શકે છે. આ માટે ફરીથી આ બધા મિત્રોનો અહીંયા આભાર વ્યક્ત કરીએ. અને બાબરિયા સાહેબ પણ હાજર રહ્યા છે કાર્યક્રમમાં. ને તમે બધા સુવાનો સમય હતો વહેલો ઉડવી જ જોઈએ. સરસ કાર્ય થતું હોય એટલે તમે બધા પણ અહીંયા કંઈક શરીરથી કંઈક મનથી અમારું કામ એ છે કે તમારી સામે કંઈક ને કંઈક આવું આપીએ જેને ક્લિક થાય. એટલે તમે બધા પણ અહીંયા હાજર રહ્યા. મને કોઈ એમ કહ્યું હતું કે સર કેટલો સમય કાર્યક્રમ આવશે? મેં કીધું અડધો કલાક. પણ મજા આવી? એમ થયું કે ના બરોબર છે, આપણે આ ઉજાગરો નથી કર્યો, જાગરણ કર્યું છે. મિત્રો જાગશું નહીં તો ભાગવું પડશે. એટલે સરસ ફરીથી અહીંયા બધા મિત્રોનો આભાર અને અહીંયા આપણે કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ. જય ભારત. આપના આભારી છીએ, અમે આપના આભારી છીએ, અમે આપના આભારી છીએ.